تو یہ جو کہتی ہے وہ کرتی ہے کہ مجھے دن بھر بھوکا رکھتی ہے کبھی کھانا نہیں دیتی ہے, مجھے دن بھر پیاسا رکھتی ہے کبھی پانی نہیں دیتی ہے. اس نے کہا میرے باپ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ دونوں ماؤں میں فرق کیا ہے, سنے میں کائنات میں چاہے جس کے دامن کو پکڑ لوں لیکن اولاد کے لیے جو محبت سگی ماں کے سینے میں ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور کے دل میں نہیں. دیکھیں آپ اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کریں آپ. آج آپ امام صاحب کے پاس آتے ہیں, یہ قاری عارف صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں, علماء تشریف رکھتے ہیں, ان کے پاس آ کے ہی کہتے ہیں ہم لوگوں سے ملتے ہیں حضرت دعا فرما دے. یہ علماء کرام موجود ہیں, بڑی ذمہ داری سے میں عرض کرتا ہوں اگر آپ کے لیے ہم لوگ تو گنہگار ہیں, آپ کے لیے اگر کوئی سید زادہ بھی دعا کرے, آپ کے لیے کوئی غوث قطب ابدال اوتار اپنے وقت کا محدث محقق مفکر فقیہ آپ کے اپنے وقت کا مجدد دعا کرے, کتنا نیک بندہ دعا کرے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یا اللہ رد فرما دے. لیکن اگر آپ کے ماں باپ آپ کے حق میں دعا کر دیں تو حضور فرماتے سنو, ماں باپ حضور فرماتے سنو, باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں, جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے, ایسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ کبھی رد نہیں فرماتا ہے. اور حضور فرماتے سنو, اس کو صوفیہ روایت کرتے ہیں کہ جب ایک ماں کے ہاتھ اولاد کے حق میں دعا کے لیے اڑ جائے تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں یہ عرش کیوں کانپ رہا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو عالم الخبیر ہے, تو ذرے ذرے کو جانتا ہے. مولا مجھے بخود ہی معلوم ہے یہ عرش کیوں کانپ رہا ہے. اے اللہ آج ایک ماں نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے اسی لیے عرش کانپ رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے سنو, تم نے اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھ بعد میں دیکھے تھے, ابھی ماں کے ہاتھ اٹھے نہیں تھے کہ میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. دعا لینی ہے تو پہلے ماں باپ کی دعا لیں. پیر صاحب کے پیچھے بعد میں بھاگے, ہم لوگوں کے پیچھے آپ بعد میں آئے. ہم لوگ دعا کریں کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ دعا قبول ہو یا اللہ رد فرما دے, لیکن ماں باپ دعا کر دے تو حضور ضمانت دیتے ہیں کہ وہ دعا ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے, اللہ کبھی رد نہیں فرماتا ہے. اور یہاں تک حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں کائنات کے سارے متقی پرہیزگار اکٹھا ہو گئے, کسی شخص کے لیے ہاتھ اٹھا دے اور کہے اللہ اس بندے کو برباد کر دے, اللہ اس بندے کو تباہ کر دے, اور حضور فرماتے تنہا اس کی ماں گھر میں ہاتھ اٹھا لے اور کہے اے اللہ میرے بچے کو آباد رکھنا, میرے بیٹے کو سلامت رکھنا. تو حضور فرماتے اگر ماں اپنی اولاد کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو کائنات کے سارے متقی پرہیزگار کی دعاؤں کو اللہ رد فرما دیتا ہے, مگر ہاں ماں کی دعا کو اولاد کے حق میں اللہ قبول کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ضروری نہیں ہے آپ کا باپ بد وقتہ مسجد میں حاضر رہنے والا ہو تبھی اس کی دعا قبول ہوگی, ایسا نہیں. وہ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا. ماں آپ کی کبھی نماز نہیں پڑھتی ہے وہ اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہوگی. باپ تمہارا نماز نہیں پڑھتا ہے اگرچہ جواری ہو شرابی ہو سود خور ہو لیکن وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے. ماں تمہاری اگرچہ نماز نہیں پڑھتی ہے لیکن تمہاری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. اگر وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے تو اللہ ان کی عبادتوں کو نہیں دیکھے گا, ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھے گا اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا. ہاں دیکھیں آج نوجوان یہاں بیٹھے, تھوڑی سی ترقی, دل لگ رہا ہے تھوڑی سی بات اور ہو جائے, بس آخری مرحلے سے گفتگو گزر رہی. توجہ ہے آج کی یہ نوجوان تھوڑی سی ترقی زندگی میں مل جائے, تھوڑا سا دلی ممبئی کا چکر لگا کے آ جائے تو یہ سمجھتے ہیں اب یہ ماں باپ جو ہے اب ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں. اب تو پیسے آ گئے, شہرت آ گئی, زندگی میں کامیاب ہو گئے, سیٹل ہو گئے, اب ماں باپ اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ذرا آپ یہ بتائیں آپ کتنا بھی کامیاب ہو جائیں کیا آپ کسی نبی کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے ہیں. دیکھیں جلیل القدر نبی ہے اللہ کے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں. اللہ نے آپ کو کلیم اللہ کا لقب عطا کیا ہے. ایک مرتبہ پہنچے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے, جب گئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ آج ذرا سنبھل کے گفتگو کرنا, آج ذرا سنبھل کے باتیں کرنا. عرض کرتے ہیں اللہ میں اس سے پہلے بھی تیری بارگاہ میں کئی مرتبہ آیا اور تجھ سے
میں نے गुफ्तगू की, उस समय हक हम कलाम हुआ। अल्लाह तूने इससे पहले कभी ये नहीं फरमाया कि मूसा गुफ्तगू करना तो संभल के करना, आज तूने क्यों फरमाया है कि मूसा आज जब गुफ्तगू करना तो जरा संभल के करना? तो अल्लाह का जवाब सुने, अल्लाह फरमाता है मूसा इससे पहले जब तुम मुझसे हम कलाम होने के लिए आते थे, तुम घर से निकलते थे, तुम्हारी माँ के हाथ उड़ जाते थे और वो दुआ करती थी अल्लाह मेरे बेटे की तबीयत में थोड़ा सा जलाल है, अगर उसकी आवाज तेरी बारगाह में बुलंद हो जाए तो अल्लाह माफ कर देना, अल्लाह दरगुजर फरमा देना। अल्लाह ने फरमाया मूसा अब तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है और कायनात में माँ जैसा तुम्हारे हक में दुआ करने वाला कोई मौजूद नहीं है, इसलिए कि माँ की दुआ को मैं कभी रद्द नहीं करता हूँ। अब माँ दुआ करने के लिए तुम्हारे हक में दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए मूसा आज तक तुम मुझसे गुफ्तगू करना तो जरा संभल के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करें आप, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र नबी को भी अगर किसी की दुआ की जरूरत है तो माँ है। देखिए हुजूर हमारे और आपके नबी हम सब की जान आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज की कमी है हुजूर की बारगाह में? किसी चीज की कमी नहीं है। जितनी नेमतें थी सबसे अल्लाह ने हुजूर को सरफराज फरमा दिया। हुजूर खुद फरमाते अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने के बन के मेरे साथ चले, लेकिन आप देखें फतह मक्का का वाकया है, हुजूर ने जब कई हजार सहाबा को नमाज पढ़ाई है, हुजूर ने सलाम फेरा, हुजूर फूट करके रोए हैं, इस तरह रोए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर के रोने की आवाज से हुजूर की जबान से नहीं, मुंह से नहीं, बल्कि दिल से आ रही थी, सीने से। सहाबा करते हैं हुजूर आज रोने का दिन नहीं है हुजूर, आज तो मुस्कुराने का दिन है। हजारों की तादाद में लोग इस्लाम को कबूल कर चुके हैं, आखिर हुजूर आप रोए क्यों है? हुजूर फरमाते मेरे सहाबा सुनो, आज मुझे अपनी माँ आमना की याद आ गई है। आज मेरा दिल ये चाहता है कि अगर मेरी माँ मुझे देखती कि मैं इतने लोगों की इमामत कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे इस मनसब पर फाइज कर दिया है, तो मेरी माँ के दिल को बड़ी खुशी होती। हुजूर ने कहा मेरे सहाबा मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तुम सबको नमाज पढ़ा रहा हूँ और मेरी माँ आमिना मुझे आवाज दे करके पुकारे, मैं नमाज तोड़ करके अपनी माँ के पास पहुंच जाऊं। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, दुनिया में सबकी मोहब्बत है अपनी जगह है और माँ की मोहब्बत अपनी जगह है, इसलिए आज तुम्हारे नबी को अपनी माँ की याद आ रही। बताएं आज माँ बाप है कदर समझ में नहीं आती, लेकिन जिस दिन दुनिया से चले गए चिराग लेके ढूंढोगे लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। दुनिया में जितने रिश्ते हैं सब मतलबी हैं, दुनिया में जितने रिश्ते हैं सब किसी ना किसी मतलब से जुड़े हुए हैं, लेकिन माँ बाप का वो रिश्ता है जो कोई आपसे मतलब से नहीं जुड़ा है बल्कि उसका ताल्लुक डायरेक्ट मोहब्बत से है। इसलिए माँ बाप की कदर करें। एक वाकया मैं आप सबके सामने पढ़ करके गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। देखिए यही मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में हर शख्स का कोई ना कोई पड़ोसी होगा। अल्लाह मेरा दिल ये चाहता है कि मैं उस शख्स का दीदार करूं जो जन्नत में मेरे साथ होगा। तवज्जो करें, देखें माँ बाप की दुआएं इंसान को कहां से कहां पहुंचाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह ने फरमाया मूसा देखना चाहते हो? अर्ज करते हैं अल्लाह दिल तो चाहता है कि मैं उस शख्स का दीदार करूं जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। अल्लाह ये तेरा करम है अगर तू दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा फला चौराहे पर फला जगह पर फला इलाके में चले जाओ, एक शख्स है उसको देख लो, वो जन्नत में तुम्हारे साथ रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बताई हुई निशानी के मुताबिक पहुंचे हैं। आपने देखा एक शख्स है जिसकी गोश्त की दुकान है, दिन भर गोश्त काटता है बेचता है। मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे, वो दिन भर गोश्त काटता रहा। जब शाम हो गई मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, उसने थोड़ा गोश्त अपने साथ में लिया, दुकान को बंद किया। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता है, आके अर्ज करता है मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं, आप हमारे शहर के नहीं लगते हैं, यकीनन आप मुसाफिर हैं। अगर आप मुसाफिर हैं तो आज की शाम की दावत आपकी मेरे घर पे है। मूसा अलैहिस्सलाम सोचते हैं ये जन्नत में मेरे साथ रहेगा, अल्लाह ने फरमाया है ये जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, ये अल्लाह ने मुझसे कहा है ये जन्नत में मेरा हमसाया होगा, ये अल्लाह ने मुझे बताया है। लेकिन ये किस अमल की बुनियाद पर मेरे साथ रहेगा? ये तो दिन भर गोश्त बेचता है, न नमाज पढ़ता है, न कोई इबादत करता है। आपने सोचा शायद ये घर पे चल के इबादत करता हो, आपने उसकी दावत को कबूल कर लिया है। मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके साथ उसके घर पहुंचे हैं, उसने मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाया, तवज्जो करें, जाके अंदर गया है, खाना तैयार किया है, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया है और आने के बाद कहता है चल के आप खाना खा लें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये बताओ तुम मेरे साथ नहीं खाओगे? उसने कहा मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा, अगर आपको मेरे साथ खाना है तो आपको इंतजार करना होगा, अगर आपको अभी खाना है तो आपको तन्हा खाना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम सोचते हो ना हो मैं खाने में मशगूल हो
हो जाऊं और ये इबादत में मसरूफ हो जाए। मूसा अलैहि सलाम कहते हैं मैं अकेले नहीं खाऊंगा, मुझे चाहे जितनी देर तक इंतजार करना पड़े मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। अगर मेरे साथ खाना है आपको इंतजार करना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जब दावत तुमने ली है तो तुम्हारे लिए तो मैं इंतजार भी कर सकता हूँ। उसने कहा असल में मामला ये है कि मेरी एक बूढ़ी माँ है जिसकी उम्र तकरीबन 100 साल हो गई है। वो कहता है वो चल फिर नहीं सकती है, वो खा पी नहीं सकती है, अपने हाथ से अपना काम नहीं कर सकती है। जब तक मैं उसे खिला पिला ना दूं तब तक मैं अपने ऊपर एक लुकमे को भी हराम समझता हूँ। उसने कहा तब तक मैं कुछ नहीं खाता हूँ। वो गया है अंदर और उसने अपनी माँ को उठा के बिठाया। मौलवी फरमाते हैं इतनी ज़ईफ़ औरत, इतनी कमजोर थी, यानी हड्डियों का एक ढांचा थी, बिस्तर पे लेटी थी, ऊपर से चादर थी, तो लगता ही नहीं था कोई अंदर लेटा हुआ है। उसने अपनी माँ को उठाया है, उसके चेहरे को धुला है, उसके हाथ और पैर को धुला है और उसने अपने हाथ से और अपने मुंह में उसने लुकमा रखा है और उसको चिबा करके उसने अपने हाथ से अपनी माँ को खिलाना शुरू किया है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते लोगों मैं भी उसकी माँ की इजाजत से, इसलिए कि वो बूढ़ी औरत की ज़ईफ़ा थी, उसके कमरे में आ गया था। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मैं देखता रहा, वो अपनी माँ को खिलाता रहा, मैं देखता रहा, वो अपनी माँ को पिलाता रहा। जब उसने अपने हाथ से अपनी माँ को खिला दिया है, अपने हाथ से अपनी माँ को पिला दिया है, उसने अपनी माँ को लिटाया है, जब चलने लगा है तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते लोगों उसकी माँ के कांपते हुए हाथ उठ गए। दुआ करती है अल्लाह रब्बुल इज्जत तू देख रहा है ना मेरे बेटे ने मेरी कैसी खिदमत की है। ऐ अल्लाह अब मैं चल फिर नहीं सकती हूँ, मेरा बेटा मुझे खिलाता भी है, मेरा बेटा मुझे पिलाता भी है। ऐ अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ और तुझसे ये दुआ करती हूँ कि तू इससे राजी हो जा और जन्नत में इसे हजरत मूसा का साथ। सलाम फरमाते हैं जब वो नौजवान मेरे पास आया है और आने के बाद कहता है चले खट के खाना खा ले, ऐ मुसाफिर चलो और चल के खाना तनाउल कर लो। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और खड़े होकर के आप कहते हो नौजवान सुन मैं कोई मुसाफिर नहीं हूँ बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ नबी मूसा हूँ और तुझे ये बशारत देने आया हूँ कि तू जो अपनी माँ की खिदमत करता है तेरे इस अमल से अल्लाह इतना राजी हो गया है कि अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी है और जन्नत में अल्लाह ने तुझे मेरा साथ। अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ माँ बाप की खिदमत की बुनियाद पर माँ बाप की खिदमत करें। अगर माँ बाप को आपने तकलीफ दी है उनसे माफी मांगे, अगर माँ बाप जिंदा है राजी करे माफी मांगे तकलीफ दी है। अगर वो इंतकाल करके कब्रों में जा चुके हैं उनकी कब्रों पे जा करके उनसे माफी मांगे। बस आखिरी गुजारिश अपने नौजवानों से करता हूँ कि हुजूर की सीरत पर अमल करें, बुजुर्गों से मोहब्बत करें, उलमा के करीब हो, दीन को समझे, दीन पर अमल करें। चलते चलते आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आपके यहाँ के हालात कैसे मैं नहीं जानता हूँ लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अक्सरियत इस चीज की है और अक्सर इलाकों और अक्सर मोहल्लों और अक्सर आप देख लें अक्सर जिलों और अक्सर स्टेट में जहाँ भी मुसलमान हैं वहाँ के हालात आप देख लें। आज मुस्लिम नौजवान जिस गुनाह में सबसे ज्यादा मुलव्विस है वो नशा है, नशा है। आज नौजवानों को मना किया जाता है, वो कहते हैं हम शराब नहीं पीते हैं इसलिए कि शराब इस्लाम में हराम है। हम कभी नटरापेट जैसी गोलियां खा लेते हैं, कभी कोरेज जैसी सिरप कटक जाते हैं और कभी हम बियर्स के फूट लगा लेते हैं, कभी चरस अफीम और गांजे के फूट लगा लेते हैं, उनकी फूक लगा लेते हैं। जरा तवज्जो करें नौजवान कहते हैं हजरत हम शराब नहीं पीते हैं, शराब इस्लाम में हराम है। हम कभी कोरेज पी लेते हैं, कभी हम बियर पी लेते हैं। जरा तवज्जो कर ले, हुजूर ने फरमाया सुनो क़यामत की निशानी है, हुजूर ने फरमाया क़ुर्बे क़यामत लोग शराब का नाम बदल के पिएंगे और हुजूर ने आगे फरमाया सुनो कुल्लु मुस्किरिन हराम, हुजूर ने फरमाया सुनो क़यामत तक जिस चीज से भी नशा किया जाएगा वो हराम ही होगी। हुजूर फरमाते सुनो जो अज़ाब शराब पीने वालों को दिया जाएगा वही अज़ाब दीगर चीजों से नशा करने वालों। अब चाहे कोरेक्स की घूंट लगाओ, चाहे बैठ करके चिलम गांजा चप्पड़ फूको, जो अजाब शराब पीने वालों को मिलेगा वही अजाब इन चीजों से नशा करने वालों को मिलेगा। नौजवान कहते हैं हज़रत जिम ज्वाइन किया, थोड़ा सा जिस्म को फरबा करना था, चेहरे को खूबसूरत करना था, बियर की घूंट लगा लिए थे। बियर शराब नहीं होती, वो तो फल से बनती है। अब मुझे बताएं कौन सी शराब है जो मिट्टी से बनती है, कौन सी शराब है जो दरख्त के पत्तों से बनती है? फलोई से बनती है शराब, जो सबसे कच्ची जिसे देसी कहा जाता है वो अंगूर से बनती है। आप सब मुझसे ज्यादा तजर्बेकार हैं, जरा बताएं आप
तो अगर आप ये कहेंगे कि फल से बनी थी इसलिए पी लिया एनर्जी के लिए, हुजूर फरमाते सुनो जिसने शराब का एक घूंट पिया, हुजूर फरमाते 40 दिन तक अल्लाह ना उसकी इबादतों को कबूल करता है और ना उसकी दुआओं को कबूल करता है। और हुजूर फरमाते जिसने एक घूंट शराब का पिया और बिना तौबा किए वो मर गया, हुजूर फरमाते कल जब वो अपनी कब्र से उठेगा उसको इंसानी शक्ल सूरत में नहीं उठेगा, हुजूर फरमाते अल्लाह उसके चेहरे को तब्दील करके या तो सूरत की तरह कर देगा या तो बंदर की तरह कर देगा। वो नौजवान तवज्जो करे, वो चेहरे को खूबसूरत करने के लिए शराब और बियर के घूंट लगाते हैं। हुजूर ने फरमाया सुनो, अगर एक घूंट तुमने शराब का पिया तो कल कब्र से उठोगे तो सूअर की शक्ल में उठोगे या तो बंदर की शक्ल में उठोगे। और हुजूर फरमाते हैं जिसने शराब का एक घूंट पिया अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत कर देगा कि वो पानी पानी चिल्लाएगा, लेकिन उसे पीने के लिए जहन्नमी बिच्छुओं का जहर जहन्नमी इंसानों की प्यास। गौर कर ले, मैं किसी पर इल्जाम तराशी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को इशारा करके कहता हूं कि तुम नशा करते हो या तुमने शराब पी। नहीं, आप अपने अमाल को बखूबी जानते हैं। अगर आपसे ये गुनाह सरजद हुआ है, यहाँ उठने से पहले आप तौबा करके उठें और ये तहिया करके उठें, कभी आप इंशाअल्लाह अपनी पूरी जिंदगी में कभी अपने हाथ को आप नशे की तरफ नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए कि हुजूर फरमाते जो नशा करता है उसके लिए दुनिया में भी जिल्लत है, आखिरत में भी जिल्लत है। दुनिया में क्या जिल्लत है, आप देखें कहीं नाली के किनारे पड़ा है, कहीं उस पे जानवर कुत्ते पेशाब करके जा रहे हैं, जिसको देखो वो गाली दे रहा है बेवड़ा रसीड़ी कह करके, जिसको देखो वो उठा करके इधर उधर फेंक दे रहा है, कहीं इज्जत नहीं है। और हुजूर फरमाते मर के जब जाएगा तो जहन्नम की आग में जलाएगा। तवज्जो कर लें, आप देखें सहाबा के दौर को, बस आखिरी बात, जितने ब्रांड आज के दौर में है ना, इससे कहीं ज्यादा ब्रांड सहाबा के दौर में। उठाइए आप सियाह सित्ता, बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, नसई शरीफ, हदीस की किताबों में उस वक्त बर्तनों के नाम अलग थे जब शराब। और आप देखें आज आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, जैसे मैं इस गाँव में आया आपके यहाँ दर्जिल पुरवा में, तो इस्तकबाल किससे किया गया, मिठाई दे करके। लेकिन सहाबा के दौर में आप देख रहे जब तक शराब हराम नहीं हुई, जब शराब हलाल थी